آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جیوگرافی چینج ہو رہی ہے؟ دیکھیں مشکل پہلی بات یہ کہ ہم ابھی آپ بات کر رہے تھے یو ایس بیسز کی. جب یہ عرب اسپرنگ ہوئی میں تو اس سے پہلے بھی کہوں گی کہ 9/11 کے بعد ڈائنامکس چینج ہو گئی تھیں، لیکن عرب اسپرنگ کے بعد یہ چیز جو ہے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ کے لیے میں کہہ سکتی ہوں اعتماد سے کہ یہ چیز محسوس کر لی تھی اس وقت کے کنگ جو ہے وہ عبداللہ نے کہ یہ جو بیسز ہیں یہ ہمارے لیے سولر سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے. انہوں نے ایک محتاط طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہوئے ایک تو انہوں نے ایسٹرن پروونس اور ویسٹرن پروونس دونوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ کوشش یہ کی تھی کہ ہم جو ہے صرف جو ہے ایک طرف امریکہ پہ ڈپینڈ نہ کریں. یہ بیسز بن گئی تھی جیسے مناما میں تھی ففتھ فلیٹ وہاں پہ بیس تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایک جو ہے اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا اور یہ بھی ایک خطرات کو محسوس کر لیا تھا. اس کے بعد ابھی حالیہ کچھ واقعات ہوئے تھے اس سے پہلے جب ہوتیز نے جو ہے وہ سعودی ریفائنریز پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت جب ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا امریکہ نے تب بھی ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یو ایس کین ناٹ بی دا سول سیکورٹی پرووائڈر. تو یہ چیز ان کو معلوم تھی اور اس سلسلے میں اب جو یہ چیز جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ بیسز ان کے لیے تھریٹ بن گئی ہیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نئی چیز ہوئی ہے. یمن میں اپنے قریب کسی اور طاقت کو آنے دینا شاید یہ ان کے اپنے مفاد میں نہ ہو، لیکن ڈیفینیٹلی جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اپنا ایجنڈا گریٹر اسرائیل کا دیکھیں فالو نا، کر رہا ہے. اسرائیل کو چھوڑیں، یو اے ای اور سعودی عربیہ نہیں لڑ رہے اس کے اوپر؟ دیکھیے سوڈان میں میں آپ نہیں لڑائیاں ہو رہی؟ سومالی دیکھیے لینڈ میں لڑائیاں نہیں ہو رہی؟ میں آپ کو ایک چیز ایک جو تجویز میں دیتی بھی ہوں جو مجھے لگتا ہے ایک واحد فریم ورک ہے جو ہے وہ پیس کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ایران مل کے ایک اپنا فریم ورک بنائے، ایک اپنا ٹیکنیکل ٹیمز بنائے جو ہے کو ایگزسٹنس کی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں نا یو اے ای میں یا یہ جی سی سی کنٹریز میں اختلافات ہوتے ہیں، ایون لائک میں نے دیکھا تھا کہ ترکی میں اور سعودی عربیہ میں بھی ہوئے، لیکن یہ جتنے بھی اختلافات ہو جائیں یہ لوگ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے اپنی ٹریک ٹو ہمیشہ الائیو رکھتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے. تو میں نے یہ سب ایک بڑا میرا مشاہدہ تھا اس چیز کے اوپر کہ ایون ایران کے ساتھ میں نے جو ہے ان کے نام اب میں نہیں لوں گی لیکن ان کے کی تھنک ٹینکس میں جو جس کا تعلق ان کے اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے بھی تھا، فیصل کے بیٹے سے، لیکن وہ وہاں پر ایون ٹریک ٹو جو ہوتی تھی ایکٹیویٹیز اس میں ایران کے اسکالرس بھی آتے تھے. تو بیک ڈور چینل سعودی عربیہ میں تو کبھی بند نہیں ہوئے. اور ایون 2011 کے اندر پرنس ترکی فیصل نے یہ آئیڈیا بھی فلوٹ کیا تھا کہ ای یو کی طرف پہ جی سی سی کی ایک کرنسی ہو اور ہم اختلافات جو ہے نا بلا کے پھر آگے بڑھیں. پھر ان کے قطر کے ساتھ آ گئے ڈفرینسز سامنے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب ان حالات کے بعد دے وڈ سٹ اینڈ دے ول فائنڈ اے وے فارورڈ. اس کے لیے بھی میں اس لیے بھی کانفیڈنٹ ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی طرف سے اسٹرائک ہوئی سابق انڈسٹریز کے اوپر اور مجھے کیونکہ اس کو میں بالکل ویژولائز کر سکتی ہوں بیکاز آئی لیو 5 years ان جبیل ان دا رائل کمیشن ایریا جو انڈسٹریل ایریا ہے. تو میں بالکل اس کو دیکھ سکتی ہوں کہ وہ کیسی اسٹرائکس ہوئی ہوں گی اور کہاں ہوئی ہوں گی. لیکن اس کے بعد دونوں فارن منسٹرز نے بات کی. تو یہ بھی ایک ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ ڈسپائٹ دس وار انہوں نے اپنا میڈیا فرنٹ اور انہوں نے اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ وہ کہیں جو ہے نا اس کو تحلیل نہیں ہونے دیا، بہت ایکٹیو رکھا. یہ جو چیز ہے یہ اس بات کو جو ہے نا مجھے امید دیتی ہے کہ دے وڈ سٹ ٹوگیدر اور وہ ایک سولوشن ضرور ڈھونڈیں گے جس سے آگے چل کے کوئی ایک بہتر راستہ نکل سکے. اور یہی ایک واحد طریقہ ہوگا. امریکہ سے اگر ان کی ڈیل ہو بھی جاتی ہے آج تو تب بھی میں سمجھتی ہوں اس وقت تک امن بحال نہیں ہوگا جب تک کہ ایک کو ایگزسٹنس کا جو فارمولا ہے ود ان دا ریجنل کنٹریز جو ہے وہ طے نہ ہو جائے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت بات کر رہے ہیں ہم جو ہے یورینیم کی انرچمنٹ کے اوپر، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کا وہ بار بار ذکر کر چکا ہے کہ جی وہ جو ہے آئل، آئی وانٹ ٹو ٹیک دا آئل، آئی وانٹ ٹو گریب دا آئل. تو یہ اگر آپ اس کے پرانے اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو وہ پریزیڈنٹ نہیں تھا تب بھی ہی وانٹڈ وہ ویژولائز کرتا تھا کہ جو ہے جنگ ہوگی اینڈ آئی ول ٹیک دا آئل. اور اب جب وہ بن گیا ہے پریزیڈنٹ تب بھی وہ کہتا ہے کہ گریب دا آئل. کبھی وہ یہ فارمولا لے کر آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایران بھی ٹول لے میں بھی لوں، ہم اس کو مل کے مینج کریں. تو یہ چیز اس کے ذہن میں ضرور ہے کہ ریسورسز کے اوپر میرا قبضہ ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سارے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی آگے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے. ان سب چیلنجز سے کیسے نپٹنا ہے وہ آگے کی بات ہوگی. اس وقت بالکل پاکستان نے
जो एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 8 अप्रैल को जो फ़ौज था वो पाकिस्तान का उसका सेना पाकिस्तान के सर पे जाता है और फिर पहली दफ़ा 47 साल में अमेरिका को और ईरान के टॉप लीडरशिप को साथ बिठाना और फिर एक ऐसी एतमाद की फ़ज़ा कायम करना कि आज भी जो है ईरान अपने आप को सिक्योर महसूस करता है पाकिस्तान आने में। ईरान ये समझ को पता है कि यहाँ पे मैं जब आऊँगा तो मेरे आने और जाने दोनों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो अफवाज पाकिस्तान के पास होगी और उनका भी बहुत एतमाद है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पे। और यही जो है उनकी जो इक्वेशन जो है हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो भी अपने आप को एक कंफर्टेबल इन कम्युनिकेशन महसूस करते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान में मैं जाके बात कर सकता हूँ। तो वी होप फॉर द बेस्ट कि हम इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखें। ये एक मरहला है, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि समथिंग इज गोइंग टू कंक्लूड एट दिस टाइम, आई वुड से दिस इज अ बिगनिंग। और हम ये उम्मीद रखें कि ये एक आगे ये जो पेशरफ्त है ये बेहतरी की तरफ जाए, ये जो सीज फायर है ये एक्सटेंड हो, एक समझौता सामने आए। लेकिन बहरहाल मेरा जो एक इतना 22 साल में सऊदी अरेबिया में रही हूँ, मेरा अपना जो मुशाहिदा है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो उनके थिंक टैंक के साथ इंटरेक्शन है, मैं एक ही चीज़ को समझती हूँ कि उस वक्त ही हकीकी तौर पर इंड्योरिंग पीस आएगी जब एक जो है को एग्जिस्टेंस का फार्मूला तय हो जाएगा। और ये कोई इसलिए इसमें कोई जो है डाउट नहीं है मुझे कि आप ये देखें कि 2 वाक़यात तो ऐसे हुए थे जहाँ पे हमने देखा था कि तुर्की के साथ बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए थे। एक जब वो फ़लस्तीन और शिप का क्या हुआ था एंड देयर वाज़ अ फीलिंग कि तुर्की इज़ टेकिंग अ लीडरशिप रोल, और दूसरी दफ़ा जब वो खशोगी का मामला हो गया था। तो ये कि उसके बाद फिर हमने बार-बार देखा यूएई के साथ जो है जब सऊदी अरेबिया ने अपना दमाम का पोर्ट एक्सपेंड किया या खब्जी का डेवलप किया, उस वक़्त भी काफ़ी जो है ये चीज़ें जो है राइवलरीज़ निकल रही थी। इसी तरीके से कतर के साथ हमने बारहा देखा, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि डिस्पाइट ऑल दिस टेंशन एंड राइवलरीज़ वो एक बीच का रास्ता ज़रूर तलाश करते हैं। आई थिंक मुबशर इज़ नॉट, सो आई कैन कंटिन्यू स्पीकिंग। जी सुहैब जी, मेरे ख्याल में वो बीच में कई दफा लिंक वक्ती तौर पे, बिकॉज वो आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिसिटी शेड्यूल की वजह से इसमें डिसरप्शन आ जाती है, लेकिन वो दोबारा से लिंक अप हो जाएंगे। अभी अब सर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रोल देख रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि व्हाट इज नेक्स्ट। आई मीन अगर लेट से वो आ जाते हैं, यहाँ पर नेगोशिएशंस होती हैं, पाकिस्तान का रोल आप क्या देख रही हैं इस पूरे मामले में? देखिए, पाकिस्तान का एक अपना इंटरेस्ट भी है। हम ये चाहते हैं कि जो तेल की रसाई है, क्योंकि हमें खलीजी ममालिक से आती है, तो हम ये चाहते भी हैं कि ये जो है किसी तरीके से भी ये कॉन्फ्लिक्ट ना फैले, क्योंकि इसका जो हमारे ऊपर डायरेक्ट असर आया है, आप ये देखें कि लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, जो तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक आम आदमी का सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि वो अपने तीसरे साल में एंटर हो रही हो और उसको आगे इस किस्म के चैलेंजेस का सामना हो। दूसरा, पाकिस्तान ने एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की है। हमारे बिल्कुल हमसाया मुल्क है हमारा ईरान, और अगर ईरान में किसी किस्म की कोई एस्केलेशन होती है या किसी किस्म की जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका असर पाकिस्तान पे बराह रास्त होता है। फिर पाकिस्तान वो हमारे यहाँ सेक्टेरियन इशू भी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊँ सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि वी आर राइजिंग अबव द सेक्टेरियन डिफरेंसेस। इस वक्त सब लोग जो है एक प्रिंसिपल पोजीशन पर हैं, सब लोग एक प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, और वो जो है इसराइल के खिलाफ हैं और वो जंग के खिलाफ हैं, और वो बिल्कुल ये समझते हैं कि इस वक्त जो है ईरान के साथ जो है एक नाजायज जो है जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई और उन पर जुल्म हुआ है। यानी वो जंग जिसका आगाज 165 बच्चों की शहादत के साथ हुआ, और यानी एक स्कूल के ऊपर जब भी कहते हैं कि आपके पास इतनी जो है जदीद टेक्नोलॉजी है और प्रिसाइज किस्म के आप जो है प्रिसिशन के साथ आप जो अटैक कर रहे हैं, आपने एक स्कूल से जनाजे उठा दिए, आपने सुप्रीम लीडर को जो है उसको उसको आपने जो है उसकी असैसिनेशन हो गई, उसकी शहादत हो गई। इनका ख्याल ये था जो कि ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा, देखिए मसला ये कि वो बोल भी देता है कि मैंने तो जो जिनको वो समझता था कि जो अपराइजिंग कर सकते हैं उनको इन्होंने हथियार दिए, गन्स दी, ठीक है। इसका ख्याल था कि जी मैं सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दूंगा तो उसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे अफरा तफरी हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी,
तो ये उसका ये जो ख्वाब था ये जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। देखिए ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, अगर वो अपने जीसस को रेप्लिकेट कर सकता है, वो अपने जीसस के रूप में तस्वीर पोस्ट कर सकता है, अगर वो शदीद जंग के दौरान ट्रम्प टावर को पोस्ट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो उसके जहन में था, मुझे जो बहुत मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजती है ना, वो ग्रैब द ऑयल और टेक द ऑयल पे बजती हैं, क्योंकि ये उसके दिमाग में चल रहा है। तो वी नेवर नो कि इस वक्त वो फंस चुका है, ही वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर, क्योंकि उस जो इकोनॉमिक इश्यूज भी आ रहे हैं, उसके मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और दूसरा उसके बाद अभी उसने चाइना भी जाना है, और उसको जिस किस्म की तनकीद का नेशनली और डोमेस्टिकली जिसका सामना है, वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त उसको भी मसीहा लग रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उसको लग रहा है कि यही है जो मुझे जो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है बाहर निकालेंगे या मुझे बेल आउट करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो उनको एतमाद है, बाकी तो कोई सवाल भी करेगा ना, पाकिस्तान तो उसकी आदत को समझ के सवाल नहीं कर रहा, फैसिलिटेट कर रहा है कि भाई आपने अपने आप को एक नो गो एरिया में फंसा दिया, इससे बाहर निकलने का रास्ता हम आपको दे रहे हैं, एक आपको फेस सेविंग दे रहे हैं, क्योंकि उसे डोमेस्टिक ग्राउंड पे विक्टोरियस उभरना है, इसलिए वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। असल बात तो उसका रिसोर्सेज पे कब्जा करना है। वो ये समझ रहा था कि उसने हर ये कोशिश की, अब उसे कोई भी ऐसा ग्राउंड चाहिए जो इसको विक्टोरियस जो है वो इमर्ज कर दे। आप उसके बयानात पढ़े, वो क्या कहता है, कहता है ये जो वो मीडिया को अपनी तनकीद का निशाना बनाता है कि आप कह रहे हैं कि जी ईरान की विक्ट्री हुई है, उनकी विक्ट्री नहीं हुई, आपकी फेक न्यूज है। तो ही वो उसने पोप के ऊपर तनकीद करने में किसी किस्म की जो है शर्म महसूस नहीं की। तो ही हैज क्रॉस ऑल द लाइंस। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बेहतरीन किरदार, एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड की, ईरान सेफ्टी का एक एहसास किया, उनके लीडर्स यहाँ पर आए, जबकि उसी वक्त जो है अमेरिका के जो मीडिया है, उनके जो अखबारात हैं, उनमें मजमून शाया हो रहे थे ईरान के इसराइल की तरफ की धमकियां थी कि जी लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक तहफ़्फ़ुज़ दिया, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी अच्छी थी, आपने देखिए कि पूरा जो एक ये मुज़ाकरात का अमल था, ये इतने बेहतर जो है वो तरीके से हुआ और इतने बेहतर माहौल में हुआ, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। फिर मीडिया को दुनिया भर के हैंडल किया, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड। तो अभी मोदी की ट्वीट पे कोई हैरत नहीं है, वो ट्वीट भी ना करे तो रेलेवेंट रहने के और क्या करे, वो तो बहुत ही, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। I would appreciate the government of Pakistan, और स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि इसकी असल चीज जो है ना कड़ी, वो 10 मई से जाके जुड़ती है, जब मार्का हक में पाकिस्तान विक्टोरियस इमर्ज हुआ और पाकिस्तान का वकार दुनिया में बहाल हुआ, एतमाद बहाल हुआ, और आज वी हैव अ डिसीजन मेकिंग फील्ड मार्शल जो कि एक फैसला कर भी सकते हैं, फैसला ले भी सकते हैं, और अपने फैसलों पे अमल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब कमिंग बैक टू फौजिया जी, what is the economical situation in America for a common man? आप क्या देख रही हैं मिड टर्म इलेक्शन में? अगर फर्ज करें एक सिचुएशन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक जंग में एंगेज हुए, जिसके बारे में कॉमन अमेरिकन का ख्याल ये था कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल ने इम्पोज की है हमारे ऊपर जंग। वो बात तय हो गई और लेट्स से कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब आकर इसको सेटल कर लेती हैं, और एक ऐसे सेटल करते हैं कि जिसमें ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पे कैपिंग को मान जाता है, और कुछ चीजें अमेरिका के हक में उस एग्रीमेंट में मानी जाती हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन ट्रंप साहब के लिए बेहतर होगी। लेकिन देन अगेन आप क्या समझ रही हैं प्रेजेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन और नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस, इन पर अब क्या इम्पैक्ट आने वाला? बिल्कुल, मैं अली आपकी बिल्कुल क्वेश्चन का भी एक सेकंड में जवाब देती हूँ। आई जस्ट वांट टू ऐड टू समथिंग जो सहर कह रही थी, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने उसको बताया है सब कुछ। देखें, ये सबसे ज्यादा खूबसूरती इस तमाम पीस एफर्ट और इन तमाम चीजों की, वो तो अपनी जगह है जो पाकिस्तान का किरदार था, बट यू नो एट ऑल टाइम्स वी नीड टू बी क्लियर एंड आवर पब्लिक, हमारे पाकिस्तानियों को इस चीज के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स, पाकिस्तान की
sovereignty, पाकिस्तान की integrity compromise नहीं हुई है. Pakistan was the first country from day one who opposed this aggression, and they said that it was a wrong war. It was imposed on Iran. Pakistan has stood its ground. We have been firm. हमने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम पीस जरूर कर रहे हैं, मगर इससे पाकिस्तान ने अपने किसी प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. और जो भी बेनिफिट्स हैं इस पीस मेकिंग एफर्ट के, और जब हमारे रीजन में पीस होगी उसके बेनिफिशियरी भी पाकिस्तानीज हैं. हमारे मुल्क में भी बहुत इकोनॉमिक इश्यूज हैं और वॉर की कंडीशंस में और जिस किस्म के हालात हैं उसमें ये नहीं रिजॉल्व हो सकते हैं. पाकिस्तान में भी बहुत इन्फ्लेशन और प्राइसेस और जॉबलेसनेस और मुख्तलिफ इश्यूज हैं, तो उनको टैकल करने के लिए आपको एक पीसफुल रीजन का में रहना चाहिए. और हमारा स्पेशली बिकॉज एक डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, हमें नहीं सूट करता है कि हमारे जिन कंट्रीज के साथ या पैक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी नेबरिंग ब्रदरली कंट्रीज हैं उन पे अटैक्स हो रहे हो, वहां एक कंफ्यूजन चल रहा हो. तो लिहाजा this was something that I just wanted to add, that all this is beautiful, mashallah, that Pakistan has done, and all credit to our leadership, but there has been no compromise on Pakistan at all in all this. पाकिस्तान की बल्कि कदोकामत दुनिया में बढ़ी है, बहुत इज्जत हुई है. और ये कितनी बड़ी बात है कि इतने वॉरिंग फैक्शंस आपस के अंदर भी जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो एक दूसरे से एग्री नहीं करते रहे हैं, पाकिस्तान को वो एक इतना क्रेडिबल, इतनी रिस्पॉन्सिबल नेशन स्टेट समझते हैं that they have felt comfortable in dealing with us. They have felt easy and comfortable in coming to Pakistan. They have felt secure. ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए. And as a Pakistani, all over the world, Pakistanis are very excited and very proud and humbled कि अल्लाह ने हमें ये एक हमारा. Coming back to the question I have asked regarding the economical situation in America and the midterm elections attached to it. बिल्कुल. तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको पता है बहुत इकोनॉमिक इश्यूज हैं ऑलरेडी. इस वॉर से पहले से बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर. हम कभी सोचते नहीं थे. यूज्ड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड यू जस्ट पिक व्हाट यू वांट, आप ले लेते थे. बट बिलीव कीजिए यहाँ पर हर चीज जो है वो नियरली डबल प्राइसेस हो गए हैं. यहाँ पर गैस के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, वो तो खैर हो ही गए थे एकदम इमीडिएटली सिंस दिस वॉर स्टार्टेड. यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट फंड करती थी, 8 प्रोग्राम्स एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, उन तमाम में कट्स हो गए. एजुकेशन के बजट में इतने कट्स हो गए. यहाँ लोग इतने परेशान हैं, आप देखते हैं ऑल द टाइम. तो यहाँ वो एक ये तो अभी नो किंग्स मूवमेंट चली है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो गए जो कभी पहले नहीं होते थे. यहाँ पर हर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो निकलता था व्हाइट हाउस से वो पहले कोर्ट में चैलेंज हो जाता था. पीपल आर वेरी अनहैप्पी. यहाँ पर इमिग्रेशन के इतने मसले मसाइल हो गए और जिस तरीके से हैंडल किया जा रहे हैं ये इनके होमलैंड सिक्योरिटी जिस तरह इश्यूज को हैंडल कर रही है. यहाँ जॉबलेसनेस है, यहाँ पर इकोनॉमी इज सफरिंग. यहाँ पर टूरिज्म इतना कम हो गया दैट इज अनबिलीवेबल. तो जब टूरिज्म आपका कम हो गया, सारी दुनिया खुशी खुशी मिकी माउस को देखने फ्लोरिडा आती थी. फ्लोरिडा का तो चलता ही सारा सिलसिला टूरिज्म पे था. यहाँ पर अब टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, यहाँ लोग मजबूरी को आ रहे हैं. यहाँ पर अब लोग अपने स्टूडेंट्स भी नहीं भेजना चाहते, फॉरेन स्टूडेंट्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड तो अमेरिका के अंदर हैं और हमेशा से थे और होते थे और रिस्पेक्ट किए जाते थे. तो बहुत यहाँ मसले, इट्स नॉट इजी. अब आप देख लीजिए कि इस वक्त ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ऐसी ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर रेड स्टेट्स कंसिडर की जाती थी और जहां रिपब्लिकन्स हमेशा जीतते थे. जो भी लोकल लेवल के इलेक्शंस हुए उनमें डेमोक्रेट्स आ रहे हैं. अब सबसे बड़ा तो हिस्टोरिकल ये बात देखिए कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर, न्यूयॉर्क सिटी इज लाइक अ कंट्री इन इटसेल्फ, जो उसकी पॉपुलेशन, जो उसकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू, और वहां आप देखिए कि एक मुस्लिम अमेरिकन इलेक्ट हो गया. इतना अमीन ममदानी जो है, आई नो यू नो हिम वेरी वेल, तो किसी तरह उनको भी इस ट्रांसमिशन में दिया है. लेट्स हियर हिज व्यूज ऑन इजराइल. I will certainly try my very best. या उनका कोई मैसेज रिकॉर्ड करवा दें फॉर पाकिस्तान's रोल इन दिस एंटायर पीस टॉक्स. इसके ऊपर कोई
Inshallah, I'll get to work on it. I can't मेरा promise तो how soon. इंटरनेट और बत्ती एक साथ खत्म हो गई थी, एंड थैंक्स टू अली गिलानी, क्योंकि ये अपना बैठ के पीछे बत्ती की लोड शेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं आजकल, और उस वजह से हमें लग गया ऐसा ही। और मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, ज़ीशान साहब हैं इंडिया में हमारे, कोई मेहरबान है, उन्होंने आज भी डोनेशन भेजी है इंडिया से, और भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पहले इंडिया से और इजराइल से डोनेशन लेके एक आदमी अडियाला का मकीन हो गया, आप मुझे भी भेजना चाहते हैं उसके साथ वाले सेल में, यार आप रहम करें मेरे ऊपर, क्योंकि मैं नहीं समझा सकता आप पारे वालों को कि ये इंडिया से मुझे क्यों पैसे आ रहे हैं यार, मैं क्यों उनका। मैं एक वो बात इस लेवल पे नहीं थी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं कहने लगा था कि 3 मखलूकें हैं जिनको बहुत ज्यादा चुभन हो रही होगी पाकिस्तान के रोल से, एक इजराइल, एक इंडिया और एक यहाँ पर मखसूस तबका, जिसको बहुत ज्यादा परेशानी लगी हुई है कि पाकिस्तान इस तेजी से कामयाबी क्यों हासिल कर रहा है और इसके प्रेजेंट गवर्नमेंट क्यों इतना बेहतर रोल प्ले कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी जरा प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब शहर कामरान बैठी है ना, और हुकूमत का भी हिस्सा है। मेरा सर आखिरी पैकेज ही ये था, जब मैं लास्ट में आप मुझे मिनट देंगे तो उस पर मैंने बात करनी। श्योर शहर साहिबा, आपने बड़ी तेजी दिखाई थी, और ये ना वो कार्ल लुइस की तरह आप लोगों ने दौड़ लगाई थी कीमतें ऊपर बढ़ाने के लिए, तेल की भी और बिजली की भी। अब तेल एकदम से सस्ता हो गया है आज सुबह को, तो जरा कल सुबह तक एक प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर आए ना कि तेल हम सस्ता कर रहे हैं और बिजली भी सस्ती कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि आप लोग बाकी इस कौम के हमदर्द हैं, सिर्फ ड्रामेबाजियां नहीं करते। तो बच्चे हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, पेट्रोल इतना महंगा है, और मैंने तो बोला है कि हारियों को, मैंने कहा अभी बैल निकालो, बैल के हल चलाओ। देखिए 2 पॉइंट जिसके ऊपर मैंने बिल्कुल कॉलिंग अटेंशन भी डाला था असेंबली के अंदर, एक तो जो ये सोलर एनर्जी की जो है पॉलिसीज चेंज हो रही, कि आपने जो है वो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की, और अभी कहते हैं दोबारा कि सोलराइजेशन पे हम जा रहे हैं, सोलर रेवोल्यूशन पे क्या की, फिर दूसरी दफा 0 यूनिट। तो ये जो फिक्स चार्जेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस और इसमें फ्यूल के जो चार्जेस हैं, डेफिनेटली ये एक ऐसा कंसर्न है, मगर हम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे ये ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही निकलते हैं। तो हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि वजीर आजम साहब सुना था कि आएंगे नेशनल असेंबली और हम उनके से सामने बात करेंगे, तो ताकि कहें कि भाई आप इन प्राइस को वापस करें, क्योंकि एक मिडिल क्लास है उसके लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है। ये जो है ना इन हालात के अंदर, क्योंकि आपकी जो फ्यूल प्राइस है उसका असर सिर्फ जो है फ्यूल पे नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं होता, हर कमोडिटी पे उसका असर होता है। स्पेशली आपको पता है, मैं तो एग्रीकल्चर को भी देखती हूँ, तो हम लोग तो एक शदीद किस्म के जो है ना एक डिप्रेशन और बहरान का शिकार है। तो आई होप कि अगर तेल की कीमतें कम हो, और मैं ये कहती हूँ कि ये जो डील हो जाए, फाइनलाइज, जंग ना बढ़े, एस्केलेशन कम हो, तो यकीनन ये जो है कीमतों के अंदर भी जो है कुछ ठहराव आए, कुछ कमी हो। मुझे एक चीज़ मैं समझती हूँ कि जिस पे मैं पाकिस्तान की तारीफ करना चाहूँगी, वो बैलेंसिंग एक्ट, यानी डिप्लोमेसी के अंदर सबसे खूबसूरती जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बैलेंस किया है। यानी आप ये देखें कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात और चाइना के साथ बरकरार रखना, और चाइना का एक अहम किरदार होना। फिर उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे 4 फॉरेन मिनिस्टर्स आए पाकिस्तान के, यहाँ पे थे, फिर इजिप्ट के और सऊदी अरेबिया के और कतर के, तो वो जो है मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी एक कामयाबी थी। फिर सऊदी अरेबिया के अंदर हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत अभी इन्होंने जो है अपने एयरक्राफ्ट तो डिप्लॉयमेंट की है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सारी डिप्लॉयमेंट शुड बी फॉर द पीस, नॉट फॉर द वॉर, क्योंकि ये भी मुझे मालूम है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो जंग नहीं चाहते, उनके सामने जो प्रायोरिटी है प्रॉस्पेरिटी है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी देखते हैं, अमन को भी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शीशे के घर बनाए। कैसी बात कर रही हैं? अपना बात यह है कि आज आपने वो तुर्किया का बयान सुन लिया है ना, उन्होंने, इजराइल ने कह दिया कि तुर्किया इज द न्यू ईरान और द नेक्स्ट ईरान। तो मेरा मतलब है कि आपको अपने डिफेंस के लिए हर वक्त अगर आप तैयार नहीं होंगे तो अगला इसी तरह तरन वाला बन के खाता जाएगा। मैं तो कहता हूं कि काश ये सो कॉल्ड मुसलमान, मैं तो सो कॉल्ड मुसलमान कह रहा हूं इनको, ये अगर इकट्ठे हो जाएं और हकीकी तौर पे, तो फिर मैं देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत जो है वो इनको इस तरह से मारती है और इनका कौन सा यानी वो नुकसान करती है। ये आपकी नाइत्तफाकी है जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ते हैं, कुड़ना पड़ता है। और ये मुसलमानों का हाल ये है कि हर साल पता नहीं 1.25 करोड़ लोग हज करते हैं और कितने लोग उम्रा करते हैं,
سارے دعا مانگتے ہیں امہ کے لیے، لیکن کوئی نظر آتی ہیں پوری ہوتی بھی، کیونکہ ہمارے کردار میں کال و فیل میں اتنا تضاد ہے کہ میں کیا کہوں، ہمیں پتہ نہیں کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں ترکی کو اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ بھی ہے اور ایک بہت جو ہے وہ اسٹرانگ ملک بھی ہے. پاکستان واحد نیوکلیر پاور جس نے پاکستان کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایک ایسے ملک کے طور پر ممتاز کیا ہے جس کی ایک اسٹرینتھ ہے. پھر نہ صرف یہ کہ نیوکلیر کی اسٹرینتھ ہے، ہمارے عوام کے اندر بھی اسٹرینتھ ہے. پھر ایران نے جتنی ریزیلینس دکھائی ہے، پھر خلیجی ممالک ہیں جو کہ تمام وسائل سے مالا مال ہیں. تو یقیناً اگر اس قسم کی کوئی ایک اسٹرینتھ دکھا دیں، اسرائیل کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس خطے میں. لیکن مسئلہ علی یہ کہ ہم قادر گیلانی یونائٹ صاحب کو کہیں جانا ہے کسی کے پاس، اور نہیں کسی سر، رسول نہیں، ہم ٹائم اوپر ہو چکا ہوا ہے، میں نے صرف آپ کو یہ ریکال میں نے کہا آپ 1 منٹ بتا دیں اپنا، آپ نے جو کہنا تھا وہ آپ کہہ لیں اب. سر جسٹ لاسٹ ہم کنکلوڈ کریں. جتنا ہم نے ایک ذمہ دارانہ ایک سنجیدہ رول پلے کی ہے گلوبل ایشو پہ، جس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ تھا، صرف خطے پہ نہیں تھا، پوری دنیا سفر کاری تھی. امریکہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو آج ہم فوزیہ بی بی سے بات کر رہے ہیں تو بتا رہی ہیں کہ وہاں کس قسم کی مشکلات ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج سے 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ویژن دیا تھا آر سی ڈی کا. آپ کو یاد ہوگا، آج ہم 50 سال بعد اسی چیز کو رو رہے ہیں. آر سی ڈی میں ٹرکی، ایران اور پاکستان تھا، اور اس کا ایک ریلوے ٹریک بننا تھا، اس پہ کارگو بھی آنا تھا، سینٹرل ایشین ٹریڈ وایا گوادر جانا تھا، اور کباڑی پورٹ اپ گریڈ ہونی تھی. پاکستان کے پاس آئیڈیل چانس ہے کہ اس وقت ایک کولیکٹیو وزڈم سے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور سارے صوبوں کو اس کے اندر کانفیڈنس میں دیں. آپ بلوچستان کو ایڈریس کریں، آپ دشمنوں کو فوکس کریں آنی ہاتھوں کے ساتھ، لیکن بلوچستان کی عوام کے لیے کوئی سیٹلمنٹ پیکج لے کر آئیں. اگر وہاں سے ریسورسز نکلتے ہیں، آپ گوادر میں ریفائنریز لگاتے ہیں، ان کو کوئی 5% کفیل کی طرح کا پیکج دیں، ان کو اکوموڈیٹ کروائیں ایران کی اس ڈیولپمنٹ کے اندر جو آگے فیوچر میں ہونے والی ہے. آر سی ڈی والا جو ویژن تھا اس کو امپلیمنٹ کریں، جیسے اسلامک سمٹ کانفرنس اور آر سی ڈی اس وقت ایک بہت میجر رول تھا. ادھر کنگ فیصل شہید ہو گئے، ادھر بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی، اور سارا جو پلان تھا ایک مسلم نان عرب مسلم ورلڈ کا ملیا میٹ ہو گیا. ابھی اس وقت پاکستان کے پاس آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ وہ دوبارہ الائنس کھڑا کرے. میری ایک عرض سن لیں، میں آپ کو صرف میں ختم کروں. جی اچھا، میں اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے آج ایران کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا، یو ول گیٹ 40% ریبیٹ. آپ کو جو مارکیٹ پرائس اس وقت مل رہی ہے آئل کی، یہ 40% نیچے چلی جائے گی. سب سے بڑے ارتھ منرل، ریئر ارتھ منرل چائنا کے پاس ہے. آپ کی اگر ٹرکی، سعودی عربیہ، ایران اور پاکستان کا ایک الائنس بنے ان کولیبوریشن ود چائنا، کیونکہ امریکہ کو چائنا کی بے حد ضرورت ہے اس وقت. ان کے ریڈار ڈیمیج ہوئی ہیں، وہ ریڈار ریئر ارتھ منرل کے بغیر ریپیئر ہی نہیں ہو سکتے، اور 90% ہولڈنگ چائنا کی ہے. پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ اس وقت تعلق ہے، اٹ از این آئیڈیل اپرچونٹی کہ آپ اپنا سیٹلائٹ سسٹم بارڈر کا انہینس کریں، آپ ڈرون سسٹم کی ٹیکنالوجی کو امپروو کریں، اور آپ جب ریفائنریز وغیرہ لگائیں تو ادھر کے کامن آدمی کو کمپنسیشن دے بلوچستان کے. یہ بے حد ضروری ہے. لاہور سے کم آبادی کا جو چیز ہو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. سو پاکستان کین بی آن اے ڈرائیونگ، ایک بڑی زبردست قسم کی فلائٹ لے سکتے. فیئر انف، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ کنگ فیصل کے شہادت کے پیچھے وہ ان کے بھانجے کا یا بھتیجے کا ہاتھ تھا، اس نے کیا ان کو شہید. ذوالفقار علی بھٹو کی یعنی غیر قانونی ڈیتھ کے پیچھے مولوی مشتاق تھا. یعنی باہر سے کسی کافر نے آ کے نہیں کیا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، مسلمان ہی اپنے دشمن ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں یہی تو میں تیسز رو رہا ہوں. یعنی یا سو کالڈ مسلمان، یعنی کوئی مسلمان تو قتل نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان تو عدالت میں اتنا غلط فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن سو کالڈ مسلم سے ہی. باقی تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، مجھے کیا پتا، انما الاعمال بالنیات. لیکن یہ ہے کہ بہرحال لے جی، نیہا کہہ رہی ہے ناؤ وی سی دا مکی ماؤس آن اسکائی نیوز. Everybody needs to see Mickey Mouse. فوزیہ قصوری, thank you for joining us, sir. Thank you for joining us. علی قادر گیلانی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.